Good evening, friends. Once again, we are on the platform of Mission Physics on 30th of May 2020. This is my fifth lecture on a row. First four lectures I have already covered on the introduction of physics. I hope you might have gone through all the previous four lectures. Now this is the five and the last part of the first chapter, that is introduction to physics. This last chapter will be covered under five headings: dimensions and derived unit. With the help of dimension, I will be clarifying what is derived units, because with the help of, when I was taking the fundamental unit class, I had told next time I will be covering derived units. So what is the relation between fundamental units and derived units, I will be explaining today in details. Now these five covering headings: first is dimension, second will be uses of dimension, third will be conversion of units, fourth will be deducing relations between units, dimensions, fifth will be limitations, sixth will be order of magnitude, and seventh will be the structure of the world. That will be the last, that will be the concluding topic. Now I want to mention here specifically this apple like structure. You have seen, this is the apple containing fundamental units. Fundamental units I have already covered. Again I am repeating: length, mass, time, current, Kelvin, mole and candela. So these are the seven. So I want to say, मैं ये बोलना चाहता हूं कि यही 7 यूनिट्स हैं जो फंडामेंटल सारी चीजों का जड़ है. इन्हीं को आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी करके किस तरीके से अरेंज करें, जैसे ही इनको अरेंज करना हम शुरू करेंगे ये एक नए रूप में आएंगे, और ये भी मैं बताऊंगा कैसे कैसे आएंगे, और इनका नाम जो होगा वो डिराइव्ड यूनिट्स होगा. फंडामेंटल यूनिट्स आपने देखा कि ये सिंगल लेटर में दिखाए गए हैं. सिंगल लेटर शोज फंडामेंटल यूनिट्स, और अगर इसके साथ दो तीन लेटर एक साथ आ जाएं तो इनको हम डिराइव यूनिट्स बोलेंगे. लेकिन डिराइव यूनिट्स कैसे होगा मैं अभी आपको बताता हूं. आई विल टेल यू. इन द टर्म ऑफ डेफिनेशन आई हैव गिवन all the physical quantities like force, pressure, velocity, acceleration, etc. can be derived from these fundamental units, quantity or base units. So fundamental units or base units are all the same. There is no difference in this. Somebody says fundamental units, other may say base units. So this is the example. Second point what I want to express: when a quantity is expressed in terms of base unit, that means कोई एक quantity मान लो is x. If I express in terms of a and b, this will be giving a certain figure. So this is fundamental units, and with the help of this whatever we have told, so this x will be equal to o. This o is derived units. That is the only difference. इनके कैसे कैसे डेफिनेशंस आएंगे और नई यूनिट जब बनेगी तो कैसा दिखेगा, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर. सो व्हेन ए क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, इट इज रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बेस क्वांटिटी. तो आपको एक बात समझनी होगी कि डेराइव यूनिट्स में जो भी हम देख रहे हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स के एक्सपोनेंट, पावर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है. दैट आई एम कमिंग विद सम एग्जांपल्स. आई थिंक यू शुड हैव द पेन एंड पेपर्स so that you can write it down for your further reference. I must tell you that when you go on solving the problems, you must have the idea of these units. Suppose one example I am taking: velocity. Velocity is the formula, the length by time, or you can say length by time. That means this is the derived unit. What we have taken? We have taken one length and one t. This is a single. I had told you the fundamental units are also always expressed in terms of single letter. So these single letters, this is single letter, so these both are fundamental quantity. After dividing, when we are dividing length by time, we are getting one
other quantity, that is velocity. So this velocity is called the derived one and this is called the fundamental one. Now power of L is 1 or power of T is 1. So in the language we can say the dimension, wherever we can take the dimension of length is 1, dimension of time is 1, because power is the dimension. In the just previous point I had told you we are taking the product of the fundamental quantity. So 1 unit of length divided by 1 unit of time gives the product, that is velocity, which is derived. This way if I write same way v by t, so this is the derived quantity, this is L by t divided by again t. So when we divide L by t, that is velocity, again by t, that will be, its new name will be called acceleration. So you have seen, आपने देखा कि ये जो इनके, कभी मैंने L ले लिया, कभी M ले लिया, कभी T ले लिया, इनके ऊपर नीचे आगे पीछे अरेंज करने के कारण एक यहाँ वेलोसिटी आया, इनको हमने फिर से एक बार T से डिवाइड कर दिया तो ये आया एक्सेलरेशन. तो इसी तरीके से ये भी डिराइव्ड यूनिट है, ये भी डिराइव्ड यूनिट है. अब हम इनको कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, L T to the power minus 2, L T to the power minus 2, क्योंकि ये t नीचे आएगी, इसको जब आप सॉल्व करोगे ये t by 1 है, इसको जब इंटू करोगे तो ये 1 by t नीचे आ जाएगा, L by t स्क्वायर और L t to the power. सो ये जो माइनस 2 है, व्हेन वी टेक द यूनिट ऑफ लेंथ, L का डायमेंशन हो गया 1 और t का डायमेंशन हो गया माइनस 2, तो 2 बार t से डिवाइड हुआ, इसका नाम हो गया एक्सेलरेशन. इस तरीके से कभी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, पावर है. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल जिससे आपको अच्छे तरह समझ में आएगा कि डायमेंशन एक्चुअली क्या होता है. मान लीजिए सपोज वी टेक क्वांटिटी फोर्स. अब फोर्स को समझने के लिए, फोर्स एक्चुअली क्या है, हमने एक फिजिकल क्वांटिटी लिया फोर्स, जिसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम बाद में डिसाइड करेंगे फॉर्मूला कैसे आता है. अभी हम डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं. एक और छोटी बात बता दूं, डायमेंशन, सपोज आप एक घरेलू एग्जांपल ले लो, टेक द प्रिपरेशन ऑफ केक्स. घर में बर्थडे में जो केक बनाते हैं, केक जब किचन में बनने लगता है तो उसमें आप क्या क्या डालते हो, दूध, कहीं से रेसिपी आता है 2 कप दूध, आधा कप चीनी, इलायची और भी बहुत सारी चीज़ें, बेकिंग पाउडर, सो मेनी थिंग्स. तो ये जितने उसके अंदर चीज़ें डालते हो वो है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी. और जब सारे कुछ बन के मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, उबल के सारे कुछ बन के आ जाता है तो वो केक के रूप में आता है. ये केक क्या है, योर डिराइव्ड क्वांटिटी. बस इतनी बात है. जब डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने लगोगे तो आपको बताना होगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ है. वही चीज़ मैं कर रहा हूँ. फोर्स इज सपोज अ केक. इसके अंदर क्या होगा, मैंने इक्वेशन डाला है, इसके अंदर जो डेफिनेशन है मास इनटू एक्सेलरेशन. अब आपको ये फॉर्मूला मालूम है, मास एक्सेलरेशन. अब मास के लिए हम क्वांटिटी क्या लेते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी. मास का क्या है, m इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी को हमने टाइम से डिवाइड किया था, ये हो गया. अब फिर से वेलोसिटी के लिए आप क्या लोगे, वेलोसिटी में लेंथ बाय टाइम हमने लिया था, सिंगल क्वांटिटी. हम इसको फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं कि फोर्स के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट हमने डाले थे ताकि वो फोर्स बना था. what all things we have, what type of fundamental quantity we have taken to convert this assumption and permutation combinations and its use for getting force. Again this is T. अब हम क्या कर सकते हैं, mass into L into T minus 2. So lastly it is M L T minus 2. अब ये पूरे देखिए, ये सिंगल लेटर सिंगल लेटर सिंगल लेटर एंड पावर एक्सपोनेंट. सो दिस हैज फोर्स में इतने डायमेंशन लगे हुए हैं. m का पावर 1 है, सो 1 यूनिट, 1 मास,
1 is length and -2 is time. तो हमने मास, लेंथ एंड टाइम को लेके एक यूनिट निकाला, फोर्स. दिस इज डिराइव्ड. अब हम ये बोल सकते हैं कि ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं. दीज आर द इंग्रेडिएंट्स. सो लाइक दिस इज द, यू कैन अंडरस्टैंड. अगर बोलेंगे कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा mLT⁻². दिस इज क्वांटिटी, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए. ये मेन फॉर्मूला है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है. ओके, नाउ दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स आई हैव गिवन टू यू. सिमिलरली इफ वी गो ऑन एनालाइजिंग दैट आई हैव टोल्ड, LNT से देखें तो प्रोडक्ट और वेलोसिटी निकल जाएगा. कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए. मैग्नीट्यूड आर नेवर डिसाइडेड. अगर इसको हाफ AT² बोले तो ये जो हाफ है ये मैग्नीट्यूड होगा. हमें इसकी और इसकी जरूरत पड़ेगी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए. तो मैग्नीट्यूड को हम हमेशा अलग रखते हैं, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता. देयर इज नो डायमेंशन. लाइक हाफ mv², हाफ इज नॉट टू बी काउंटेड. नाउ फिजिकल क्वांटिटीज विच एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर एनक्लोज्ड. ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, अगर हम इसको बेस क्वांटिटीज में दिखाने के लिए कोशिश करेंगे तो इसको हमें ब्रैकेट में डालना होगा. इसको हमने जैसे ब्रैकेट में डाला, ये समझ में आ जाएगा कि हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं. वी विल गेट ऑन द डायमेंशनल फॉर्मूला. ठीक है. सो E इज इक्वल टू हाफ mv². आपके लिए मैं एक देता हूं, आप अपने घर में बैठ के निकालिए. हाफ इज इक्वल टू हाफ, E इज इक्वल टू हाफ mv². इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना है. आप कैसे निकालेंगे, एक एक करके आप कोशिश कीजिए. इसमें देखिए कि कोई चीज बदले नहीं. इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, mL²T⁻². mL²T⁻². इसका मतलब है कि इसके अंदर एक m है v², v/L/T आप जानते हैं, L² एंड T². तो इसको आप you try at your home, what will be the dimensional formula of energy. E is energy, energy is half mv². Try to do that. So I think I have given a lot of clueful advice, lot of clues to the idea of dimension and derived units. This topic will be continued with the help of unit uses of dimension in my subsequent lecture tomorrow. Thank you.